प्रिय भाई बहनों, आज की शाम फिर से हम यहाँ जमा हुए हैं ताकि आज के बाइबल अध्ययन को कर सकें। आज जून महीने की पहली तारीख है और साल है 2020। मैं आप सबों का जो इस बाइबल अध्ययन में निरंतर शामिल हो रहे हैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। डियर फ्रेंड्स, टुडे is 1st June 2020 and I welcome all of you, our beloved church members and friends and the seekers who are regularly participating in this Bible study. I greet you all in the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. I know that you are so faithful in Bible study. Many of you are taking your time and spending time with the Lord in the Bible study. And so once again I say to all the believers, all the Christians, all the saints in Epistle Methodist Church, whether you are old in age or you are crossing somewhere about 50s, 60s or below that, or our youth and our children, I greet you all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. We deeply appreciate for your prayers, for your concerns, for your support, and above all for your availability, the time, the quality time you give for the Lord.
And this time that has been set apart for us for the evening Bible study is tremendous. Now we'll see how long this Bible study will last, because now the lockdown has been ceased and gradually things will become normal. Once we start our regular worship service in the church, though this will be now for only 45 to 50 minutes, because you know that the government has allowed the churches and other religious places to operate or to function, but with limited number of people, and they are saying it's only 20. So that means we need to have a couple of worships so that 20 people can come. And I'm thinking to have at least in a day 8 or 9 worship of 45 or 50 minutes each. And in the beginning 2 services we'll have the Holy Communion, so that people who want to join, because past almost 2.5 months or 3 months this was not done. So I'll request that you keep in mind, and most probably we are going to start worship right on 8th also, though it is on Monday, but our worship will be by evening, about 4 or 5 worship. And I hope that it will be announced very soon, and you God's people, you saints, you'll come to the church and participate in the worship. आप सबों के लिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि अब चूँकि लॉकडाउन धीमे धीमे कम की जा रही है, इसलिए 8 तारीख से हमारे कलीसिया में, हमारी चर्च बिल्डिंग में आराधना शुरू होंगी, लेकिन उसका ड्यूरेशन बहुत कम होगा। शुरू के 3-4 सर्विसेज जो हैं, जो हम करेंगे 3-4 हफ्तों में, उसको हम 45 से 50 मिनट में ख़त्म करेंगे और प्रभु भोज की विधि मनाएंगे, ताकि पिछले 3 या 3 महीने से चूँकि हम प्रभु भोज की विधि में शामिल नहीं हो सके, तो उसमें अब शामिल हो सकेंगे। समय और बाकी बातों का अनाउंसमेंट, सूचना आपको बहुत जल्द दी जाएगी। लेकिन हमारी ये बाइबल स्टडी है, थोड़ी दिन और हम इसको कंटिन्यू करेंगे और मैं चाहता हूँ कि इसमें भाग लेते रहें। डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन आई थैंक यू दैट यू have been standing with us. As pastor, we feel that your prayer has been with us, and we praise the Lord for you. प्रभु मैं आपको हम धन्यवाद देते हैं। I thank you all, one and all, for standing with us, praying with us, and supporting us in our those worthy tasks that God has given us to accomplish in and through Apostle Methodist Church, and I always call this church a blessed congregation. Everyone who is a member of this church is a blessed person, because I believe that many of you have that experience of being born again. God has given you. Continue that in that walk with the Lord. May God bless you. मैं फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं और ये कहता हूं कि हम कितने आपके धन्यवादित हैं कि पिछले दिनों में जबकि लॉकडाउन था, हालांकि आप घर से निकल नहीं पाए, लेकिन आप में से बहुतों ने हमारे प्रार्थनाएं करी है। हमने आपके प्रार्थनाओं को महसूस करा, आपके प्रार्थनाओं के कवरेज को महसूस करा। और प्रभु आपको आशीष दे। अगर आप में से कोई आज बीमार हैं, दुखी हैं, परेशान, हम चाहते प्रभु आपको चंगाई दे, प्रभु अपनी शांति आपको दे और प्रभु का अनुग्रह आप पर बना रहे। डियर फ्रेंड्स, इफ समवन few are sick today, are not feeling well physically, or some type of problem you have, we always pray that God may give you His healing, His grace and mercy, and protect you and lead you day by day. Let's pray as we start this Bible study. स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए प्रभु, जो आपने हमें दिया है कि हम आपके वचन का अध्ययन कर सकते हैं। हमारी प्रार्थना प्रभु की इस अध्ययन में आप हमारी मदद करें, हमारी सहायता करें। लॉर्ड, वी प्रे फॉर दिस बाइबल स्टडी दैट गॉड यू हैव गिवन टू अस द टाइम। हेल्प अस लॉर्ड दैट वी शुड स्पेंड दिस मोमेंट्स इन योर प्रेजेंस, स्टडीइंग योर होली वर्ड, अंडरस्टैंडिंग योर रेवलेशन, एबल टू have inculcate in us the spirit of obedience
the spirit of humility, the spirit of willing to share your good news with others. So Lord, we pray for this Bible study. Talk to us and guide us. प्रभु, इस बाइबल स्टडी में आपकी मौजूदगी हो, आप हमसे बातचीत करें. आपके पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं जो हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का है. आमीन. Dear friends, our study will continue from where we left on Saturday, rather Friday, because Saturday was the time where our assistant pastor, Pastor Sharon Savant, took the Bible study. We were thinking about St. Paul's second missionary journey towards the end of it. And if you read this chapter 18, you will know again, and I want to repeat few words so that we are reminded what we did on Friday. Chapter 18 verse 1 onwards. After this, Paul left Athens and went to Corinth. Now Corinth, where he lived almost many months, and he worked there. He preached the word of God, and along with his companions, they were there. And he found a Jew named Aquila, a native of Pontus, recently came from Italy with his wife Priscilla, because Claudius had commanded all the Jews to leave Rome, and he went to see them. इसके बाद पौलुस एथेंस को छोड़ करके कुरिन्थ में आया. वहाँ उसे अक्विला नामक एक यहूदी मिला जिसका जन्म पुंतुस में हुआ था. वो अपनी पत्नी प्रिस्किल्ला के साथ इटली से हाल ही में आया था, क्योंकि क्लॉडियस ने उन्हें सब यहूदियों को रोम से निकल जाने की आज्ञा दी थी, इसीलिए वह उनके यहाँ आया. तो यहाँ पर हमने देखा, पिछले दिनों में हमने देख लिया, इसलिए मैं केवल इसके लिए आपको याद दिला रहा हूँ. वी हैव ऑलरेडी सीन दिस. आई वांट टू रिमाइंड यू दैट हाउ सेंट पॉल met this couple, Aquila and Priscilla, in Corinth, and they were living in Rome, but because Caesar Claudius has asked all the people, all the native Jews, all the people who were living in Rome to go out, to leave Rome, so they had come in Corinth and they were there. यहाँ पर हमने देखा कि किस प्रकार से संत पौलुस जब एथेंस छोड़कर कुरिन्थ में आया तो वहाँ पर उसकी मुलाकात अक्विला और प्रिस्किल्ला से हुआ, जो यहूदी लोग थे, लेकिन रोम से निकल जाने की आज्ञा को पाने के बाद वो कुरिन्थ में आकर के रह रहे थे, और उनका एक ही काम था. एक और भी बात हमने देखी कि ये एक साथ कार्य करते थे और उनका काम था तंबू सीना. अब पौलुस का काम भी यही था, उनका ये वोकेशन था कि तंबू सीते थे. अब आप सोच सकते हैं कि व्यक्ति जो दिन के समय अपने साथियों के साथ प्रचार करने जाता था, सिनागोग में बैठकर लोगों से वाद विवाद करता था कि लोग प्रभु को जाने, लेकिन जो समय मिलता था उसमें तंबू सीते थे. एक मेहनत कश जीवन, एक धुरंधर जीवन, a life which was always busy, and God used him for his task. वो सुस्त नहीं थे, he was not lazy, और दूसरों को वो कोई ऐसी बात नहीं बोलते थे कि दूसरों लोगों को तकलीफ हो, कठिनाई हो. वो क्रिटिसिज्म को सुनते थे, बुराइयों को बारे में सुनते थे, लेकिन उनके लिए प्रार्थना करते थे. और ये बहुत बड़ी बात हम पौल के जीवन में सीखते हैं. हमने देखा पिछले पहले और दूसरी मिशनरी यात्रा में भी तक कि कितने जगह जहाँ पर प्रभु के वचन को लोगों ने सुना, विश्वास करा, लेकिन वहीं पर उसका विरोध भी हुआ, इसलिए इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है, इस बात को हमें जानने की आवश्यकता है. जब प्रभु के सेवक प्रभु की बुलाहट के अनुसार उसकी सेवा करते हैं, बहुत से लोग उनके साथ हो जाते हैं, उनके वचन को सुन करके प्रभु को अपना जीवन देते हैं. लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा क्रिटिकल होते हैं, हमेशा समस्या खड़ी करते हैं. उनके पास पॉजिटिव थिंकिंग कम होती है, नेगेटिव ज़्यादा होती है. अब पौलुस के समय ऐसा था, आज भी ऐसा, लेकिन उन सब चीज़ों से, क्रिटिसिज्म से और उन बातों से जो
मन को हट करती है, प्रभु के सच्चे सेवक को बल मिलता है कि वो प्रभु में बढ़ता चला जाए। क्योंकि ये एक द्वंद्व है। दिस इज अ वॉरफेयर एक्सपीरियंस वेयर अ सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड, मे बी ए पास्टर, may be an evangelist, may be a missionary or anybody else, when he is serving the Lord faithfully in his vineyard, giving his whole concentration in the ministry of God as Paul did, there are people who criticize. That is their job. That is their job and that is their understanding. पर वचन में लिखा है कि प्रभु न्याय करता है। मैं सोचता हूँ कि पौलुस, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन के बारे में लिखा है, दूसरे कुरिन्थ के पत्री में वो कहते हैं कि कलीसिया के बोझ ने, लोगों के क्रिटिसिज्म ने, तमाम बातों ने मुझे बहुत दबाया, लेकिन प्रभु मेरे साथ रहा। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए ट्रू सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड। ही लिसन टू एवरीबॉडी एंड कीप क्वाइट, कीप क्वाइट। क्योंकि अब किसको बोलें, किसको जवाब दें? जवाब तो प्रभु के सामने वो देते हैं। और प्रभु जब बदला लेना शुरू करता है तो जो क्रिटिकल लोग हैं ये अपने आप शांत हो जाते हैं। प्रभु के न्याय के सामने कोई ठहर नहीं सकता। ये नहीं कि प्रभु एक दिन सबका न्याय करें, प्रभु न्याय यहाँ भी करता है। और हम इस बात को देख सकते हैं मित्रों कि जब कुछ लोग जो प्रभु के सेवकों के खिलाफ हमेशा खड़े रहते हैं, मानो वो सारी बातों को जानते हैं, सारी बातों को ठीक वही कर सकते हैं, प्रभु के सेवक शांत रहते हैं, उनको बोलने की आवश्यकता नहीं है। पौलुस ने कभी भी पलट का जवाब नहीं दिया, शांत रहा और तब प्रभु के वचन का प्रचार वो करता रहा। लेकिन जो क्रिटिकल लोग थे वो बोलते गए। हम इसी बात को देखते हैं नहम्याह के जीवन में। पुराने नियम, नहम्याह को प्रभु ने कहा, उसकी अगुवाई करी, उसने उसकी अगुवाई करी और वो जाके उसने शहरपनाह बनाने का काम शुरू करा। जब वो शहरपनाह बना रहा था तो वहाँ लिखा है कि संबलत और तोबिया, अम्मोनी और बाकी लोग जो वहाँ थे, उन्होंने उनका विरोध करना शुरू करा। और उन्होंने यहाँ तक करा कि जो शहरपनाह बना रहा है नहम्याह, उसके लोग, अगर गीदड़ भी उस पर चले तो वो टूट जाएगा। विरोध, विरोध, विरोध। फिर हम पढ़ते हैं एस्तर की दोनों, हामान ने विरोध करा, मोर्देकाई का विरोध करा और उसने उसको मारने के लिए एक गैलो खड़ा कर दिया, बहुत लंबा एक खंबा। लेकिन अंत में क्या हुआ? वही उसमें टांगा गया। जो विरोध करते हैं बिना किसी कारण के, जैसे पौलुस का लोगों ने करा, और यहाँ पर अभी हम देखेंगे उनका न्याय परमेश्वर करता है, बहुत जल्दी करता है। इसलिए मित्रों, हमें अपने जीवन पर झांक कर देखना है कि क्या हम उनमें से तो नहीं हैं। ये हम प्रभु के सेवक हैं, प्रभु की सेवा करना चाहते हैं, दीनता के साथ, नम्रता के साथ, अविश्वास योग्यता के साथ। कलीसिया के अंदर राजनीति नहीं आनी चाहिए। पौलुस के दिनों में ऐसा करा उन लोगों ने, यहूदियों ने, जो नाखुश होते थे। वो सोचते थे यहूदी लोग कि भाई हमारा काम खत्म हो जाएगा, अगर ये लोग सारे विश्वासी बन जाए, मसीह बन जाए, तो हमें कौन पूछेगा। ऐसा नहीं है। अगर आप अपने कार्य को अच्छे से करें प्रभु के डर में, तो प्रभु आपके साथ रहेगा। इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि पौलुस, यहाँ लिखा है कि वो उनके साथ रहा, यानी वो अक्विला प्रिस्किला के साथ रहा और वो एक साथ कार्य करते थे। वो तंबू सीते थे, मेहनत करते थे। और यह लिखा है कि 18 अध्याय के 4 पद में लिखा है कि वह हर एक सबत के दिन आराधनालय में वाद विवाद करके यहूदियों और यूनानियों को समझाता था। इन सब के बावजूद, विरोध के बावजूद, पौलुस के अंदर एक ललक पाई गई, एक कशिश पाई गई, एक भूख पाई गई कि चाहे कुछ भी हो जाए वो सुसमाचार के प्रचार के काम को करते रहे। What we read about Paul here, that he and Aquila Priscilla, and because he was of the same trade, he stayed with them and worked, for they were tent makers by trade. But Paul was also conscious about his task, which is very important, because he supported his ministry by that also. And he reasoned in the synagogue every Sabbath and tried to persuade Jews and Greek.
That was his service. That was his ministry. He, without stop, he continued his ministry. He went to synagogue. In spite of all criticism, in spite of all opposition, he knew that my task is to fulfill the will of the Lord. And that is why this true servant of God, who face in their lives criticism, not from outside, from within, but they are not dismayed. They are not discouraged. They continue to share the word of God. They knew that God will judge those who are simply trying to block his life, his ministry, by their old nature, by their selfish understanding, and by their nature of egoistic nature. Okay, why this type of things are taking place where we don't want this type of thing? But the word of God teaches a servant of the Lord that he or she has to continue in spite of all this odd situation, because his calling is not to serve the people, his calling is to serve the Lord. And that was the thing that Paul was doing. He knew that people are criticizing, and everywhere he faced criticism. But Paul was so much sold out to Christ. He always preached the word, and then he went every day into synagogue and discussed his faith with the Greeks and Jews also. That was his nature, and I deeply appreciate, and that is a motivation for me personally and many servants of the Lord. Now, we also see that when Silas and Timotheus came from Macedonia, and they joined Paul in Corinth. Now see again here, verse 6. And when they opposed and reviled him, he shook out his garment and said to them. Again here there is a opposition. यहाँ लिखा है, परंतु जब विरोध और निंदा करने लगे, अच्छे काम की निंदा, पौलुस ने कोई बुरा नहीं करा था, कितनों ने विश्वास करा, लेकिन कुछ ऐसे लोग थे, एलिमेंट आज भी समाज में, हमारे समाज में भी है, जो एलिमेंट हैं वो हमेशा गलत सोचते हैं, उनकी सोच गलत होती है, और यहाँ पर उन लोगों ने उसका विरोध करा। तब पौलुस ने क्या कहा, तुम्हारा लहू, उसने विरोध के सामने क्या कहा, उसने अपने कपड़े झाड़ कर उनसे कहा, तुम्हारा लहू तुम्हारी गर्दन पर रहे, मैं निर्दोष हूं, अब से मैं अन्य जातियों के पास जाऊंगा। What was the decision of Paul when he faced that critical time or opposition? What did he say? He said here, it's written here very clearly. And when they opposed and reviled him, he shook out his garments and said to them, your blood be on your own heads. I am innocent. This is what? Biblical teaching. The Lord has taught us one great golden rule. Do to others as you want people do for you. That we forget. When we try to criticize someone or a group of people or people who are working for the Lord, we forget that. We think that we are superior, we understand better, we have more knowledge, and everything that we are doing is right. But friend, we need to know our heart is known by the Lord. Our action is seen by people. And therefore, Paul was so much concerned about this type of thing. He said, okay, if you don't want me, now let's go. We are going for the Gentiles, to the Gentiles. Paul was concerned for the Jews also. But these people, they started opposing him. In every place, in various places he had to face the opposition. But what was his decision? My work will not cease. It will continue. If not among you people, Jews, then among Gentiles. They are hungry. They are hungry. And this is what that lesson we learn here. A servant of the Lord, who is a true servant of the Lord, will not cease the ministry just because of opposition. The people who oppose, like us, they are also mortal people. One day they will be dead and gone. Dead and gone. They will not be there all the time. But his church will remain
till he returns, and his kingdom is for all the time, eternity. And we, or Paul, or other missionaries and evangelists and pastors who are called by the Lord, they will get the reward in due course. The word of God says in 1 Corinthians chapter 15 verse 58, therefore my brothers, I say to you, don't be discouraged, but continue in the service of the Lord, knowing the fact that your reward is in heaven. You will not lose your reward. It is there. And therefore, this is the biblical teaching for a servant of the Lord, for the missionary like Paul and his companions. They never ceased in teaching the word of God to others. They continued. So we read here. Now we come towards the last part of his second missionary journey. And we read now here, if you read with me verse 11, अगर आप 11 पद को पढ़े तो लिखा है, इसलिए वह उनमें परमेश्वर का वचन सिखाते हुए 1.5 वर्ष तक रहा। कहाँ रहा वो? कोरिन्थ में रहा। और इसके बाद यहाँ लिखा है, जब गल्लियो अखाया देश का हाकिम था तो यहूदी लोग एका करके पौलुस पर चढ़ा। अगेन अपोजिशन, और न्याय आसन के सामने लाकर कहने लगे। यह लोगों को समझाता है कि परमेश्वर की उपासना ऐसी रीति से करें जो व्यवस्था के विपरीत है। नाउ दिस वाज अ टेरिबल एक्यूजेशन अगेंस्ट पॉल ने कभी ऐसा नहीं करा था, लेकिन लोग जो अपने आप को स्वधर्मी मानते हैं, जो इगोइस्टिक लोग हैं, जिनके जीवन के अंदर प्रभु ने काम तो करा लेकिन उस काम को उन्होंने अपने स्वार्थ से दबा दिया है, वो अपने स्वार्थ को हमेशा उखाड़ते हैं, सामने लाते हैं और गलत दोष लगाते हैं। अब पौलुस पर क्या दोष लगाया गया? व्हाट वाज द एक्यूजेशन? दे सेड दिस मैन मीन्स पॉल इज परसुएडिंग पीपल टू वर्शिप गॉड contrary to the law. Never in his life he has said that. He only said Christ has fulfilled the law. The word of God says, of course at that time Matthew was not being written the gospel, but in Matthew 5 chapter verse 17 says, the Lord said, I have not come to abolish the law, but I have come to fulfill the law. And so when we trust Jesus, when we follow Jesus, we have fulfilled the law in Christ. We have fulfilled the law in Christ. And therefore Paul knew this very clearly. Paul को पता था कि मैंने इसके खिलाफ कोई बात नहीं करी है। मैं केवल यही कहता हूँ कि पहले जिसको मैं सताता था, प्रभु को सताता था अनजाने में, अब मैं उसकी सेवा में आ गया। That was his decision, firm decision. अब प्रभु ने बोला उनको कि पॉल तू बोलता जा, अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर यही लिखा है ना, यहाँ पर यही लिखा है। 9 पद को देखें, अगर यहाँ 18:9 में लिखा है, प्रभु ने एक रात दर्शन के द्वारा पौलुस से कहा, मत डर, वरन कहे जा, चुप मत रह, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, और कोई तुझ पर चढ़ाई करके तेरी हानि ना करेगा, क्योंकि इस नगर में मेरे बहुत से लोग हैं। इस बात से पौलुस खुश था कि कोरिन्थ में प्रभु के बहुत से लोग हैं, इसलिए उनको मैक्सिमम लोगों तक सुसमाचार पहुंचाना। He knew that Lord spoke to him in dream, in his vision. He said, Paul, don't be dismayed. And the Lord said to Paul one night in a vision while he was in Corinth, do not be afraid, Paul, but go on speaking and do not be silent, for I am with you. I am with you. And this is the promise of God, of the Lord Jesus Christ, for every pastor who is sincerely serving the Lord, every missionary, every evangelist, and everyone who is preaching the word of God. Jesus said, I am with you. And he had said earlier also in Matthew 28, and if you read 19 to 20, he said, and see and behold, I am with you, and behold, I am with you, behold, I am with you till the end of the age. So when the Creator is with us, there's no need to be worried, no need to be dismayed, no need to be discouraged in spite of all opposition. This will come, but their condition will be horrible if they don't repent one day. The word of God says very well. जो क्रिटिसाइज करते हैं, पश्चाताप नहीं करते प्रभु के सामने, उनकी दशा बहुत भयंकर होगी आने वाले दिनों में। बाइबल में ये लिखा गया है, बाइबल में बताया गया, इसलिए पौलुस इस बात को जानता था और वो इन बातों को समझते हुए सेवा में आगे बढ़ता था और वो जानता था कि प्रभु मेरे साथ है। When the Lord is with me,
nobody can be against me, nobody can harm me, because I am fulfilling the law of the Lord, I am fulfilling the calling of the Lord. And he was very particular in sharing the word of God every day. जब पौलुस बोलने पर था, पौलुस की आदत थी कि लोगों से बातचीत करे, लोगों को समझाए, और यहाँ भी कोई जो बोलना चाहता था, लेकिन जब वो बोलने पर था तो गल्लियो ने, गल्लियो कौन था, हमने यहाँ देखा कि गल्लियो जो था अखाया प्रांत का हाकिम था, वो वहाँ मौजूद था। तब गल्लियो ने, जब पौलुस बोलने पर था तो गल्लियो ने यहूदियों से कहा, हे यहूदियों, यदि ये कुछ अन्याय या दुष्टता की बातें होती तो उचित था कि मैं तुम्हारी सुनता। See, this judge knew, Gallio knew that these fellows who are accusing Paul are, of all the accusation, are wrong. This man of God has done nothing. And आज भी ऐसे होता है। कलीसिया में जब प्रभु के सच्चे सेवक सेवा करते हैं तो लोग अलग अलग प्रकार से दोष लगाते हैं, अलग अलग प्रकार के, बिना फैक्ट के जाने हुए, बिना फैक्ट के जाने हुए। और जब फैक्ट आ जाता है तो सब शांत हो जाएंगे। यहाँ पर गैलियो जानता था कि पौलुस ने ऐसे की कोई गलती नहीं करी जिसका दोष वो उस पर लगा रहे हैं। और यहाँ लिखा है, गैलियो ने कहा, यहूदियों से कहा, पद 14, हे यहूदियों, यदि ये कुछ अन्याय या दुष्टता की बात होती तो उचित था कि मैं तुम्हारी सुनता। अगर पौलुस तुम्हारे बीच में कोई गलत बात बोलता, तुम्हारे जीवन को बरगलाता, तुम्हें गलत शिक्षा देता, तुम्हारे दिमाग, तुम्हारे हृदय में, तो मैं बोलता। लेकिन मुझे इस बात का एहसास है, मुझे इस बात को पता है कि यह व्यक्ति कोई गलत बात नहीं करता। परंतु यदि यह विवाद शब्दों, नामों और तुम्हारे यहाँ की व्यवस्था के विषय में है तो तुम ही जानो। Then he said to them, his master stroke was that since this is pertaining to your law, Jews, he said to the Jews, therefore I want to keep myself aloof. Who said it? The judge said, of Achaia. And even today also, in our society today, when there are some accusation against God's people, and sometimes they go to court also, and then in the court the judge says, you have Bible, you have your discipline, you have your law, you act accordingly. Why you have come here? And I've heard in my life many times. And therefore, people who serve the Lord, this is the comfort for them. Yes, one of the things is important, that your life should be holy and pure and in accordance with the will of the Lord. And then if people oppose, their opposition will be null and void by the supreme judge, Lord Jesus Christ. He will support, he will vindicate. यहाँ साफ साफ लिखा है कि I am your vindicator, I am your shepherd, I'll save you even from all untoward incidents. And Psalm 19, nowadays we are studying that also, and you might have studied that also. Psalm 91, जहाँ लिखा है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, बचाऊंगा। And God has saved you. इसलिए हमें धन्यवादित होना चाहिए, हमें प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए। पिछले 2.5-3 महीनों में मैंने आपको पहले कहा था, मार्च के महीने में, कि प्रभु आप जो विश्वासी हैं आपका बाल बाका नहीं होगा। आज यही है, लेकिन उस सब के बावजूद हम क्रिटिकल बन जाते हैं, क्योंकि हमारे स्वभाव में है ना, उस स्वभाव में जो आदम का स्वभाव हमारा अंदर है वो बदला नहीं है। उसको बदलने की आवश्यकता, उसको रिनोवेट करने की आवश्यकता है, ताकि जीवन के अंदर परिवर्तन आ जाए और प्रभु हमारे जीवन से खुश हो जाए। और इसके लिए हमें प्रयत्न करने की आवश्यकता है। और नहीं यहाँ करेंगे, जब समय समाप्त हो जाएगा सब कुछ समाप्त हो जाएगा, द्वार बंद हो जाएगा और वो कहेगा तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं तुम्हें नहीं जानता। तुमने जीवन में, तुमको मैंने मौका दिया 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, पर तुमने क्या करा? तुमने प्रभु के सेवकों का सामना करा, उनके खिलाफ बातें करी। अब मैं तुम्हें नहीं जानता। हे कुकर्म करने वाले, मुझसे दूर हो जाओ, मेरे सामने से दूर हो जाओ, और वहां जाओ जहां रोना, दांतों का पिसना। ये जजमेंट है, अंत में ये होगा। इसलिए हमें अभिचेत करने की आवश्यकता है। और यहाँ पर लिखा है, पौलुस का जो न्याय कर रहा था गल्लियो, जो अखाया का न्यायी था, उसने यहूदियों को उनके सोच के अनुसार जवाब दिया कि ये तुम्हारी व्यवस्था की बातें हैं, मैं क्यों इसमें बीच में पढ़ूं?
इसमें हमारे रोम के राज्य के बारे में या उसके संदर्भ में कोई बात नहीं है जो इसके खिलाफ बात कर रहा है, इसलिए मैं इससे अपने आप को अलग करता हूं। लेकिन उन लोगों ने जो उसका विरोध कर रहे थे सिंथेसिस को पकड़ा, क्योंकि उसने पौलुस को और उसके टीम को शरण दी थी और उसने उन्हें न्याय आसन के सामने से निकलवा दिया। उन सब लोगों को न्यायाधीश ने कहा कि तुम जाओ यहाँ से, तुम्हारे सारे एक्यूजेशन पौलुस के खिलाफ गलत है और पौलुस प्रभु का विश्वासी है, वो गलत नहीं कर सकता। मैं इस बात को जानता हूं। और उसने उनको वहां से निकलवा दिया। ही आस्क्ड देम टू लीव एंड ही ड्रोव देम ऑफ फ्रॉम द ट्रिब्यूनल। बट यहाँ क्या लिखा, तब सब लोगों ने आराधनालय के सरदार सिंथेसिस को पकड़कर न्याय आसन के सामने उसको मारा, क्योंकि इस व्यक्ति ने पौलुस और उनके लोगों को शरण दिया था। वो दंड का भागी हुआ। लेकिन गैलियो, यहाँ लिखा है, परंतु गैलियो ने इन सब बातों की कुछ भी चिंता ना की। वो शांत रहे, क्योंकि जानते थे कि ये मुद्दा जो है, अगर मैं इसके बारे में बोलने लग जो न्याय दे दूं तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा, बवंडर मच जाएगा। गैलियो शांत रहा, जो एक बहुत समझदार व्यक्ति था। वो जानता था कि मेरे शांत रहने में अब सब कुछ अच्छा होगा। अब आगे यहाँ लिखा है, पौलुस बहुत दिन तक वहां रहा। कहाँ रहा? कुरिन्थिस में। फिर भाइयों से विदा होकर किंक्रिया में इसलिए सिर मुड़ाया क्योंकि उसने मन्नत मानी थी, और जहाज पर सीरिया को चल दिया और उसके साथ प्रिस्किल्ला और अक्विला भी थे। अब हम दूसरी मिशनरी यात्रा के अंत की तरफ आते हैं। We come toward the end of the second missionary journey when Paul left Corinth and he went to Cenchrea, and he shaved his head because he had taken a vow, and he took with him and sailed to Syria with Priscilla and Aquila. और यह लिखा कि उसने 19 पद को देखिए, और उसने इफिसुस पहुंचकर उनको वहीं छोड़ा। किसको छोड़ा? अक्विला प्रिस्किल्ला को। यहाँ रहो और काम को संभालो। और आप आराधनालय में जाकर यहूदियों से विवाद करने लगे। अगेन ही स्टार्टेड बिकॉज ही न्यू दैट दिस इज माई वर्क। वो जानता था कि ये मेरा कार्य है। वो यहूदियों के आराधनालय में गया इफिसुस में, और वहाँ प्रचार करने लगा और लोगों से विवाद करने लगा। और यहाँ लिखा है 20 पद में लिखा है, वी रीड इन द 20th वर्स, जब उन्होंने उससे विनती की कि हमारे साथ और कुछ दिन रहे, उसने स्वीकार ना किया। उसने कहा नहीं, अब मेरा समय हो गया, मुझे यरूशलेम जाना है, संतों से मिलना है। लेकिन वहाँ उन लोगों को उसने रखा, अक्विला प्रिस्किल्ला को, कि वहाँ सेवा करते रहे, और वो आगे चला गया। और यहाँ लिखा है 22 पद में लिखा, और कैसरिया में उतरकर यरूशलेम को गया और कैसरिया को और कलीसिया को नमस्कार करके अन्ताकिया में आया। अब ये अंत है दूसरे मिशनरी यात्रा की, द एंड ऑफ द सेकंड मिशनरी जर्नी। वी रीड अबाउट दैट इज 22nd वर्स। When he had landed at Caesarea, he went up and greeted the church at Jerusalem, and then went down to Antioch. कितनी बड़ी बात पौलुस के अंदर है। उसने मिशनरी यात्रा के अंदर अपने दोस्तों के साथ बहुत जगह दुख उठाया, परेशानियां उसने उठाई, लेकिन वो जानता था कि कलीसिया में, यरूशलेम में संत हैं, प्रेरित लोग हैं, और उनसे मिलने गया। और उनको लिखा है कि ही ग्रीटेड देम, उन्होंने उनका सलाम करा, और निश्चित रूप से उनको बोला होगा कि हमने क्या क्या काम करा। डियर फ्रेंड्स, मेनी टाइम we are depending on programs and report, but true work has his own witness. It speaks, and here we see in the context this Bible study, it spoke through in and through life of Paul and his companions. There are no written report, I think. He met them personally and said, these things we have done in the missionary journey, and now we have come back here. Pray for us and let us give thanks to the Lord. हमें अपने जीवन में इस बात को दर्शाना है कि हम प्रभु के कार्य कर रहे हैं, केवल लिखित में नहीं कि हमने ये कर दिया और वो कर दिया, रिपोर्ट रख दिया। रिपोर्ट तो रखी रहेगी और वो रखी रहेगी। स्वर्ग में रिपोर्ट नहीं पहुंचेंगी हमारी,
स्वर्ग में क्या पहुंचेगा? हमारा प्रतिफल पहुंचेगा, हमारा फल पहुंचेंगे. We will be recognized in heaven because of the fruit of our Christian life. First of all, my work, how it has been in the world, no matter how many years I lived in this world, and second thing, by my fruit. How many fruit, how many people have been won by me for the Lord Jesus Christ will be the great question in heaven. And I believe that also firmly. And that's why Paul talks about himself in the last days of his life, when he was the prisoner in Rome. He said, now I'm counting my days, which will be ended very soon. But I know that there's a crown of life in heaven for me. And the Lord has not only kept that for me, but for many people who love him and serve him faithfully. Dear friends, we need to think about that. We need to think about that. God has planned, he has called us for his ministry. We are in his ministry, and when we are in ministry, we need to understand that he takes care of our life. He will not leave us. वो हमें छोड़ेगा नहीं, वो हमें इस संसार के अंदर अकेले नहीं छोड़ देगा, लेकिन वो हमारे साथ रहता है, वो हमारे जीवन को देखता है, और जो सेवा उसने हमें दी है उसका प्रतिफल वो हमें देगा. वचन में इसके लिए साफ साफ हम पढ़ते हैं, संत पौलुस की गवाही को देखते हैं, और हम इस बात को देखते हैं किस प्रकार से पौलुस ने इस बात को कहा अपने कलीसिया के अपने लोगों को जो यरूशलेम में थे, जो प्रभु के प्रेरित थे, कि मित्रों हमने ये काम करा है, हमने ये काम करा है, और प्रभु हमारे जीवन को आशीषित करेगा जब हम स्वर्ग में पहुंचेंगे, जब हम प्रभु के पास पहुंचेंगे. और इन कामों को जानता था, उस बात को जानता था, और इसलिए प्रभु का दास इस बात को अपने विश्वासियों को कहता है. वो कहता है उनसे, क्या कहता है? देखिए, 2 तीमुथियुस 2 अध्याय, और हम देखेंगे उसके कुछ पदों को जो अपने आत्मिक बेटे तीमुथियुस को कहता है. 2 अध्याय मैं पढ़ूंगा आपके सामने 8 पद से. यीशु मसीह को स्मरण रख, जो दाऊद के वंश के से हुआ और मरे में से जी उठा, और यह मेरे सुसमाचार के अनुसार है, जिसके लिए मैं कुकर्मी के समान दुख उठाता हूँ, जिसके लिए मैं कुकर्मी के समान दुख उठाता हूँ. For which I am suffering, bound with chains as a criminal. But the word of God is not bound. लेकिन प्रभु का वचन कैद में नहीं है. इस कारण मैं चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सहता हूँ, कि वे भी उस उद्धार को यीशु मसीह में है अनंत महिमा के साथ पाएं, अनंत महिमा के साथ पाएं. That was his hope, that once he left this world, there will be glory in eternity. Therefore I endure, 2 Timothy 2:10. Therefore I endure everything for the sake of the elect, that they also may obtain the salvation that is in Christ Jesus with eternal glory. And there he writes here, the saying is trustworthy, for if we have died with him, we will also live with him. If we endure, we will also reign with him. If we deny him, he will also deny us. If we are faithless, he remains faithful, for he cannot deny himself. That is the reason. ये कारण है जिसके लिए प्रभु के सेवक लोग जो है निरंतर प्रभु की सेवा करते हैं, विरोध के बावजूद, परेशानी के बावजूद, क्योंकि जानते हैं, लिखा है, यदि हम उसके साथ मर गए हैं तो उसके साथ जिएंगे भी. यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे. यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वो भी हमारा इनकार करेगा. यदि हम अविश्वासी भी हो तो भी वो विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वो आप अपना इनकार नहीं कर सकता. हाउ ट्रेमेंडस टेस्टिमनी ऑफ सेंट पॉल. ही इज राइटिंग दिस लेटर टू तिमोथियस, हिज स्पिरिचुअल सन. और वो हमारे लिए भी है कि हमें इस कार्य के अंदर बढ़ते जाने की आवश्यकता है. और पौलुस वहाँ पर कलीसिया के पास जाता है जहाँ प्रभु के संत थे यरूशलेम में, और उनको बताता है किस प्रकार से उसने इन कार्य को करा है पिछले दिनों में, और दूसरी मिशनरी यात्रा के दौरान करा है. और उसके जो मित्र थे वो भी वहाँ पर गए उसके साथ. इसके बाद सब कुछ पूरा करके, उनको सलाम करके, उनके आशीष लेकर के पौलुस वापस
सीरिया के अंताकिया में आता है जहाँ से भेजा गया था। तो दिस इज द एंड ऑफ द सेकंड मिशनरी जर्नी एंड वी रीड अबाउट सेंट पॉल। और 22 पद में लिखा है, और कैसरिया में उतरकर यरूशलेम को गया और कलीसिया को नमस्कार करके अंताकिया में गया, क्योंकि वहीं पर वो वहाँ से भेजा गया था। How systematic work Paul had. Tremendous work. In spite of all accusation, in spite of all opposition, he continued his ministry, and that is the lesson we learn today, friend. No matter we are clergy or laity, it doesn't matter. The important things, are you faithful to the calling of the Lord? क्या विश्वास योग्य प्रभु के बुलाहट के प्रति? और अगर विश्वास योग्य है तो प्रभु आपको आशीष देगा। आइए हम प्रार्थना करें। Let us pray. Heavenly Father, we thank you and praise you for today's Bible study. We thank you, Lord, that you have spoken to us in a very precise way, Lord, from the Word. And you are teaching us, Lord, that we as Christian, many of us, Lord, we confess that we are Christian for years, generations, Lord, but our work is something else. Lord, forgive us. Forgive us, Lord, so that we may continue to share the Word of God, give a witness to others, and then those who are serving, Lord, missionaries, evangelists, or pastors, we should respect them, Lord, because God has sent them. God has called them. And when God has called them, God will take care of them. God will not forsake them. Help us to, Lord, understand, recognize that for us and for the people who are serving you. हे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इस बात को हम समझें अपने लिए और जो लोग आपकी आराधना करते हैं। आज बड़े धन्यवाद के साथ प्रभु जी इस धन्य कलीसिया को, प्रभु एपोस्टल मेथोडिस्ट चर्च को आपके हाथों में सौंपते हैं। एक एक संतों को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं जो इस कलीसिया के अंदर पाए जाते हैं, जो बुजुर्ग हैं, प्रौढ़ हैं, जवान हैं, प्रभु बच्चे हैं। हर एक पर आपकी कृपा दया पाई जाए। लॉर्ड, लेट योर ग्रेस बी अपॉन ईच एंड एवरी वन ऑफ अस। We thank you for the word of God that has come to us this evening, and we honor you. We glorify you, Lord, for this word, and we pray, God, let this word penetrate our hearts and mind so that we may continue to walk with you faithfully, because you are faithful. In Jesus' matchless name I pray. Amen. Dear friends, now we'll have some announcement. The first announcement is that we are going to have VBS, Vacation Bible School, online from 8 to 12 of June 2020. And since it will be online, the timing will be from 10 a.m. to 12 noon. हम VBS के प्रोग्राम में अब होंगे हमारे बच्चों के लिए, और ये सारे बच्चों के लिए जो 18 साल तक के हैं इसका आयोजन होगा। तारीख है 8 से 12 जून और समय होगा सुबह 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक। अब मैं चाहूँगा कि इसमें हम हमारे बच्चों को प्रोत्साहित करके भाग लें, और मैंने इसका अनाउंसमेंट हमारे साउथ डिस्ट्रिक्ट के चर्चेस में भी करा, क्योंकि बहुत से चर्चेस हैं जिनके पास ऐसा साधन नहीं है जो हमारे पास है, और अगर उनके बच्चे इसमें भाग लेना चाहे तो हम उनका स्वागत करते हैं। जो हमारा थीम है इस VBS का हुआ है रनिंग फॉर द प्राइज, परितोषक के लिए दौड़ना, प्राइज के लिए दौड़ना। और जो थीम है वह है 2 कुरिन्ती 9 अध्याय 24 और 25। 2 कुरिन्ती 9 अध्याय 24 से 25। तो मैं चाहूँगा इसको याद रखें। और एक और बात इसके बारे में कि अगर आप बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं या चाहती हैं, या और किसी काम में VBS में मदद करना चाहते हैं या चाहती हैं, तो मेहरबानी से आप अपना नाम डॉक्टर बिट्रा जॉर्ज को दे दें, जो हमारे संडे स्कूल के सुपरिंटेंडेंट हैं। आपकी मदद करेंगे और एक टीम को बनाएंगे जिससे कि हम VBS को सफलता के साथ कर सकें। कलीसिया के अंदर ये कार्य बहुत महत्वपूर्ण है। कलीसिया को वो कार्य जो कलीसिया की तरक्की के लिए है, हमेशा हम उसका सपोर्ट करते हैं, पास्टल टीम उनका सपोर्ट करती है। इस बात को हम ध्यान में रखें। तो मैं चाहूँगा कि आप मेहरबानी से तैयारी करें, अपने बच्चों को प्रोत्साहित करें। 8 से 12 जून 2020 तक हमारे चर्च में VBS का कार्यक्रम है जो ऑनलाइन होगा। समय होगा सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक। इसको आप ध्यान में रखिएगा। हमारा थीम है रनिंग फॉर द प्राइज,
और थीम है जो बाइबल का पाठ है वो है 2 कुरिन्थी 9 अध्याय 24 और 25 पद, जिसको आप याद रखिएगा और मैं चाहता हूँ कि इसमें कोऑपरेट करिएगा। प्लीज कोऑपरेट इन दिस बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी ए ट्रेमेंडस ब्लेसिंग फॉर आवर चिल्ड्रन। 10 पर हम बाइबल स्टडी कर रहे हैं, प्रौढ़ लोगों के लिए है कि बच्चे समझ नहीं पाते हैं, वो ड्राइंग करते हैं, पढ़ते हैं, कुछ और खेलते हैं, कुछ करते हैं, छोटे बच्चे हैं। हम उनका सम्मान करते हैं, उनको प्यार करते हैं। इसलिए मैं चाहूँगा कि इस VBS के लिए प्रार्थना करें, और अगर आप इसमें अपनी सेवकाएँ देना चाहते हैं तो मेहरबानी से डॉक्टर बिट्रा जॉर्ज से संपर्क करें, आपकी मदद, आपकी सहायता करें। दूसरी बात, हम चेन ऑफ प्रेयर में हैं। हमारा समय है रात को 10 से 11, उसको आप याद रखिएगा और प्रार्थना में समय व्यतीत करें। तीसरी और आखिरी बात, हम प्रार्थना करें अपने देश के अगुओं के लिए, हमारे राष्ट्रपति, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे राज्यपालगण, हमारे मुख्यमंत्रीगण, हमारे देश की सेना के लिए, हमारे पुलिस के लिए कि जो सेवा वो उन्होंने करा, इसलिए हम धन्यवाद देंगे। हालांकि कई कमियां रही हैं, लेकिन सब जानते हैं और उसको हम याद नहीं करते हैं। तो हम इनके लिए प्रार्थना करें कि प्रभु इनकी सहायता करे, स्वस्थ रखे। हम प्रार्थना करें हमारी कलीसिया के लिए, हमारे दिल्ली रीजनल कॉन्फ्रेंस के बिशप सुबोध सिंह मंडल साहब के लिए, मैडम सुदीप्ता मंडल के लिए, हमारे हर एक DSS के लिए, हमारे हर एक पासबान के लिए, हमारे लेटी के लिए, हमारे WCS की बहनों के लिए, हमारे जवानों के लिए, MYF के मेंबर्स के लिए और संडे स्कूल के बच्चों के लिए। और हम प्रार्थना करें हमारे एक एक परिवार के लिए जो इस धन्य कलीसिया के सदस्य हैं, इंग्लिश के, हिंदी के और नेपाली के, कि प्रभु हर एक को संभाले, हर एक की सहायता करे, ताकि हर एक का जीवन प्रभु को पसंद आए और हम प्रभु के डर में बढ़ते चले जाएं। प्रभु के वचन को पढ़ने वाले बने, प्रभु के लोगों के लिए प्रार्थना करने वाले बन सके, ताकि हमारा जीवन प्रभु की महिमा कर सके। आइए हम प्रार्थना करें। Lord, we thank you and praise you for this time that you have given to us. As we come in, Lord, to in the closing of this Bible study, which we had today, Lord, and we saw how St. Paul was concerned about his missionary journey, and that was the second missionary journey, Lord. He concluded with the fear of the Lord, with thanksgiving in his heart, and he went to Jerusalem to say thank you and greet the saints and the apostles and the believers in Jerusalem. And from there, Lord, he went to Antioch of Syria, from where he was sent. He was dedicated for the missionary journey. So concerned about all these details, Lord, we thank you. हम धन्यवाद देते प्रभु कि संत ने और अपने दोस्तों के साथ उस कामों को पूरा करा जो प्रभु ने उनको दिया था। और हम यही चाहते प्रभु कि हम भी अपने जीवन के इस छोटे से जीवन के काल में प्रभु जी अपनी बुलाहट को समझें, पहचानें और आप में बढ़ते चले जाएं। जो वचन का बीज आज बोया गया प्रभु व्यर्थ न जाए, पर हमारे हृदय के अंदर प्रभु अंकुरित हो जाए प्रभु, और उसमें 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना फल उत्पन्न हो सके। हम प्रार्थना करते प्रभु हमारे कलीसिया में वर्शिप सर्विस के लिए प्रभु, जब हम 8 तारीख से इसकी शुरुआत करते हैं होली कम्युनियन सर्विस से प्रभु, जो छोटी सर्विस होगी 45 से 50 मिनट्स की प्रभु, हर सर्विस में हम चाहते प्रभु कि एक दिन में हम कम से कम 7-8 सर्विस करें प्रभु, मदद करें ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे कलीसिया के अंदर आए और उस सर्विस के अंदर उस आराधना में भाग ले सकें। हे प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे साथ हैं। पिछले 2.5 से 3 महीने तक प्रभु, जबकि हम इस आइसोलेशन में रहे प्रभु जी, लॉकडाउन में रहे, आपने हमें संभाला और हमें से किसी का प्रभु बाल बाका नहीं हो प्रभु। यह आपकी कृपा है प्रभु, आपकी दया है और हम धन्यवाद देते हैं आपकी। और हम चाहते प्रभु कि हमारे आँखें आपकी तरफ लगी रहें और हम आप में बढ़ते चले जाएं। हमारे धन्यवाद को स्वीकार करें। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और शांति हमें हर एक के साथ इस समय और हमेशा तक होती रहे। एंड नाउ मे द ग्रेस ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, लव ऑफ द फादर एंड स्वीट कम्युनियन ऑफ द होली स्पिरिट रेस्ट एंड अबाइड विथ ऑल ऑफ अस नाउ and forevermore. Amen. यीशु ही प्रभु है, Jesus is Lord. May God bless you. Keep safe, keep healthy and have peace of the Lord in your life. सबको शुभ रात्रि, सबको जय मसीह।